Hello and welcome. Welcome to learning session number 7 of chapter number 2 of Science 2, which is Life Processes in Living Organisms Part 1. So far in this chapter, we have seen introduction. We had revised key terms and topics related to this chapter from our previous classes. We had seen aerobic and anaerobic respiration. Aerobic has 3 points, 3 steps. First is glycolysis, second is TCA cycle or Krebs cycle, and the last one is electron chain transfer reaction. And anaerobic has two steps. First is same as aerobic, which is glycolysis, and second one is fermentation. Aerobic मतलब in the presence of air or in the presence of oxygen, क्योंकि air में oxygen होता है. Anaerobic यानी without air, यानी विदाउट एयर यानी उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगा, राइट? सो बिना ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन होगा. Then we had seen how do we get energy from different food components like proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, water and fiber. And in the last learning session we had seen the first type of cell division, which is called as mitosis. Okay, in today's learning session we're going to learn the second type of cell division, which is called as meiosis. Okay, the first one was mitosis, the second one is meiosis. Okay, the words we're going to learn today is first is gamete, and gamete is also known as germ cell. Okay, so gamete or germ cell kya hota hai, that we'll see. And what is spore? So these two words we're going to learn today. Before we actually begin, let me first quickly revise the big picture. What is the big picture? Cell hai, cell ke andar nucleus hai. Nucleus ke andar there are chromosomes. Chromosomes are made up of DNA, and DNA is made up of genes. So you should always know the big picture. Okay, so you must have copied this table in the last learning session, so you'll need not copy it in this learning session. Also, one more thing I wanted to clarify was the difference between chromosome and chromatid. So chromosome में if you see ये X वाला shape दिखेगा, okay, ये X वाला shape दिखेगा, whereas chromatid में ये X वाला shape नहीं दिखेगा, बस एक आधा हिस्सा होगा. ये chromosome का आधा हिस्सा बीच में से अगर मैं कट कर लूं तो जो आधा हिस्सा बच जाएगा उसको बोलते हैं chromatid. So for meiosis, it is very important for you to understand the difference between a chromosome and chromatid. Okay. Next, let us quickly revise mitosis. Okay, so mitosis में मैंने बोला था there are textbook में 4 steps दिए, but in total there are 5 steps. First step है interphase, जो तुम्हारे textbook में नहीं लिखा है. Okay, so इसको याद कैसे करना है? I prefer Malayalam and Tamil. So I for interphase, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase. Okay, so I prefer Malayalam and Tamil. इसको मैंने इस तरीके से याद किया. ओके, सो स्टार्टिंग में हमारा जो क्रोमोसोम्स होगा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा. ओके, और इंटरफेस में ये डुप्लीकेट हो जाएगा और सब कुछ डबल डबल हो जाएगा और एक सेंट्रियोल आने वाला है. सेंट्रियोल का काम हम लोग को आगे समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट जो है तो इंटरफेस से फर्स्ट कौन सा है? आई प्रिफर, पी यानी प्रोफेस, प्रो यानी पहला. ओके, पी फॉर पहला. सो ये पहला स्टेप है. सो पहले स्टेप में या फिर प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल है डबल हो जाएंगे. ओके, सेंट्रियोल डबल हो गए और यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उससे कंडेंस होना यानी कॉम्पैक्ट हो जाना, कॉम्पैक्ट होके छोटे होके ये क्रोमोसोम सभी एक्स शेप में दिखने लगेंगे. और एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे गायब है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है वो गायब हो जाएगा. नेक्स्ट पी के बाद आता है आई प्रिफर मलयालम, सो एम फॉर मेटाफेज. So meta starts with the letter M, right? So M for middle. So metaphase में सारे chromosomes middle में आ जाएंगे. Okay? So M for middle, सारे chromosomes middle में आ गए metaphase में. और यहाँ पे जो dotted lines दिख रहे हैं, what are those? Those are spindle fibers. Okay? Spindle fibers जो centriole से निकल रहे हैं, वो centromere से पास हो रहे हैं हमारे chromosomes के. What are centromeres? If you see, यहाँ पे जो red dot दिख रहा है, that is called as centromere. Chromosome का center. So, जो स्पिंडल फाइबर्स है क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमर से पास हो रहे हैं. नेक्स्ट इज एम के बाद ए, एनाफेज, राइट? ए फॉर अवे. ओके, कैसे याद रखना है? ए फॉर अवे. तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू स्टार्ट कमिंग अपार्ट और अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, क्रोमैटिड्स नॉट क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स. अगर यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे भी आधे आधे दिख रहे हैं, पूरा पूरा एक्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधा ही दिख रहा है. सो क्रोमैटिड हो गए अभी. पहले यहाँ पे क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, दे आर बीइंग पुल्ड अवे. ए फॉर
anaphase, and A for away. So they are being pulled away by the spindle fibers created by the centrioles. And last is telophase. So T for 2, T for 2. So telophase में तुम लोग को दो न्यूक्लियस दिखने लगेंगे, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, न्यूक्लियस का बाउंड्री दिखने लग गया, एंड उसके बाद साइटोकिनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके फिर दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे. सो दैट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ mitosis that we have already seen. So if you have already copied these diagrams in the previous learning session, you need not copy this diagram in this learning session. Okay, but अगर previous learning session में copy नहीं किया था, feel free to copy it now. यहाँ पे तुम लोग copy कर सकते हो, नीचे लिख दो हर एक स्टेप का नाम. This is interphase, prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, we are going to move ahead. We are going to see meiosis. Okay, so first point, meiosis is completed through two stages. Those stages are meiosis 1 and meiosis 2. So mitosis में सिर्फ 4 अलग अलग steps थे, but यहाँ पे 2 stages है और दोनों stages के अलग अलग steps होंगे. Okay, and we'll see that in detail in the coming slides. Okay, before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number. So ये interphase में होता है. राइट, मैंने बोला राइट, इंटरफेस ये वर्ड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इंटरफेस में ये स्टेप होगा कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो डिवाइड होने वाला है ना, तो डिवाइड होने से पहले डबल हो जाना चाहिए. सो इट विल डबल अप, दैट इज इफ क्रोमोसोम नंबर इज 2n, इट इज डबल्ड अप टू 4n. यहाँ पे 2n और 4n क्यों लिखा है? वो लोग एकदम सिंपल करने के लिए n लिख सकते थे और n का 2n हो जाएगा. राइट, डबल हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2. सो अगर यहाँ पे n क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे 2n हो जाने चाहिए. लोग ने 2n और 4n क्यों लिखा है? द आंसर इज कभी भी क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, अकेला क्रोमोसोम कभी नहीं होता. सो पेयर्स में होता है, राइट, यानी हमेशा इवन नंबर होगा. 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 46 होगा, 54 होगा. ओके, 53 नहीं होगा, 13 नहीं होगा. सो हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा इवन नंबर होगा. सो इवन नंबर कैसे लिखोगे? 2 इंटू सम नंबर. सो वेरिएबल को n ले लिया और 2n लिखा तो वो इवन नंबर फिक्स हो जाएगा. सो अगर वो 2n होगा तो डबल होने के बाद 2 का डबल 4, सो 4n लिखा है. ओके, सो दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू मियोसिस. तो अभी 2 स्टेजेस होने वाले हैं मियोसिस में. सो दिस इज योर स्टेज 1 ऑफ मियोसिस. ओके, सो प्रोफेज, तो वो जो 4 स्टेप्स है उनका नाम सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ओके, वो सारे स्टेप्स सेम है, बट यहाँ पे स्टेज 1 की बात हो रही है, तो सबके सामने ये 1 रोमन न्यूमेरिकल 1 डाल दिया. ओके, सो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ओके, सो लेट अस सी अभी हर एक स्टेप में क्या हो रहा है. इट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, बस एक छोटे छोटे चेंजेस है, वो तुम लोग को याद रखने. क्या चेंजेस है मियोसिस में? ओके, सो फर्स्ट वन, द क्रोमोसोम्स कंडेंस. ये भी माइटोसिस में हुआ था. क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में से वो एक्स शेप में दिखने लगेंगे. सो क्या हो रहा है? वो कंडेंस हो रहे, कॉम्पैक्ट हो रहे, पास में आके शॉर्ट हो रहे हैं. सो क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू कंडेंस एंड न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन. सो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है वो डिसअपियर होने लग जाएगा प्रोफेज 1 में. और एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या है यहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर अकर्स. क्रॉसिंग ओवर अभी यहाँ पे तुम लोग ने देखा, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है, एक्स शेप में क्रोमोसोम, और यहाँ पे भी एक एक्स शेप में क्रोमोसोम दिख रहा है. तो ये 2 क्रोमोसोम एकदम साथ में चिपक गया है. सो व्हेन दैट हैपेंस, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ओके, वो लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं. सो 2 क्रोमोसोम साथ में जब बाजू में आ जाएंगे तब वो लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं, और इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. तो ये अलग होने वाला है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में. माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट मियोसिस के प्रोफेज 1 में कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने वाला है, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. ओके, और ये जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 सेंट्रियोल्स हो जाएंगे, और वो लोग ऑपोजिट एंड्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे. मेटाफेज अगेन सेम, पी फॉर पहला स्टेप. ओके, पी फॉर पहला स्टेप. सेकेंड एम फॉर मिडल. सो एम में क्या होता है? सारे क्रोमोसोम्स मिडल में आ जाएंगे. सो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, ऑल द क्रोमोसोम्स आर कमिंग इन मिडल. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं. सो
यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम्स है। तो मिडल में आ गए, बट मिडल में सब 2-2 क्रोमोसोम साथ साथ में आ गए। ओके, सो दैट्स योर मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट एनाफेज, अगेन ए फॉर अवे। ए फॉर अवे यानी क्या अवे होने वाले? सारे अभी माइटोसिस में क्रोमैटिड्स अवे हो गए थे, राइट, क्रोमैटिड्स। बट यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे क्रोमोसोम्स अवे हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम्स है, राइट, हर एक जगह पे 2-2 क्रोमोसोम्स है। तो एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, एक क्रोमोसोम ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और माइटोसिस में क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे जा रहा था, बट मियोसिस में पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ऊपर, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम नीचे, ऐसा होने वाला है। ओके, सो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव ऑन द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और किसके मदद से? वो जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं सेंट्रियोल में से, उसकी वजह से वो खींचे जा रहे हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्यों बोला है? होमोलॉगस यानी होमो मतलब सेम, ओके, होमो मतलब सेम। क्या सेम होगा? साइज और शेप सेम होगा क्रोमोसोम्स का। तो एक जो ऊपर जा रहा है और एक जो नीचे आ रहा है क्रोमोसोम, दोनों का साइज और शेप सेम होगा, इसलिए उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ओके, सो दैट्स योर एनाफेज 1. लास्ट इज टेलोफेज, T फॉर 2. सो टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस बनने वाले, और उसके बाद साइटोकिनेसिस होके साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेल्स बन जाएंगे। ओके, सो दैट्स योर टेलोफेज 1. सो वी आर डन विथ मियोसिस का स्टेज 1. अब तक मियोसिस का स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 बाकी है। ओके, स्टेज 1 में 4 स्टेप्स है और स्टेज 2 में 4 स्टेप्स है। So we're going to move ahead and we're going to see important points of meiosis stage 1. So in meiosis 1, recombination or crossing over occurs between homologous chromosomes. ये कहाँ पे हो रहा था? This was happening यहाँ पे प्रोफेज 1 में। क्या हो रहा था? रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। या तो तुम रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो या फिर क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हो। उसका मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने वाला है। ओके, और किसके बीच में हो रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आई जस्ट टोल्ड यू, जिनका साइज और शेप सेम होता है। होमो यानी सेम। Those homologous chromosomes, not sister chromatids, okay? So chromatids की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम की बात हो रही है, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. Haploid cells मतलब क्या? Haploid cells यानी ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, इसका उल्टा क्या होता है? ड्यूप्लॉइड सेल्स। ड्यूप्लॉइड सेल्स में हर क्रोमोसोम 2-2 होंगे। हैप्लॉइड सेल्स में हर एक टाइप का क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होगा। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। क्यों हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए? इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक टाइप के क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स, सॉरी सेम टाइप के क्रोमोसोम्स नीचे आ गए। तो ऊपर वाले में सारे एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, नीचे वाले में भी सब एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? इसलिए उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और नीचे दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डबल क्रोमोसोम्स नहीं है। So that is why they are called haploid chromosomes. So that's a meiosis 1. Next we want to see meiosis 2, stage 2. So meiosis stage 2 is very similar to mitosis. Okay, so meiosis 2 is almost same as mitosis. तो अभी 2 haploid cells form हुए, right? यहाँ पे if you see at the end of stage 1 of meiosis 2 cells form हुए haploid. अब ये 2 cells वापस डिवाइड होके 4 सेल्स बनने वाले हैं। ऊपर वाला सेल वापस 2 में बन जाएंगे, नीचे वाले सेल वापस 2 में बट जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ 2-2 दिखा है। ओके, सो प्रोफेज 2 अगेन सेम सीक्वेंस फॉलो होने वाला है। आई प्रेफर मलयालम एंड तमिल। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बस स्टेज 2 है ये। सो प्रोफेज 2 में क्या होने वाला है? वापस 2 सेंट्रियोल्स फॉर्म होने वाला है, सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होने वाले हैं और सेंट्रियोल्स ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल मूव होने वाले हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने वाला है। नेक्स्ट मेटाफेज, M फॉर मिडल, P फॉर पहला, M फॉर मिडल। मिडल मेटाफेज 2 में सारे क्रोमोसोम्स बीच में मिडल में आने वाले हैं। नेक्स्ट एनाफेज 2, A फॉर अवे। सो नाउ क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू गो अवे, माइटोसिस की तरह। मियोसिस स्टेज 1 में 2 क्रोमोसोम्स, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स अवे हो रहे थे, बट यहाँ पे क्रोमैटिड्स, आधा क्रोमोसोम यहाँ पे, आधा क्रोमोसोम यहाँ पे। सो 2 आधे आधे क्रोमोसोम्स जिसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं वो सेपरेट होने वाले हैं। सो एनाफेज में द क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड यूजिंग द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट टेलोफेज, T फॉर
2. So then 2 cells are going to form. Okay, so that's your meiosis stage 2. Again, we're going to see some important points for meiosis stage 2. So meiosis 2 में meiosis 2 is just like mitosis. In this stage, 2 haploid daughter cells formed in meiosis 1. So meiosis 1 में जो 2 haploid cells बन गए थे, undergo division by separation of recombined sister chromatids. So यहाँ पे जो sister chromatids combined थे वो separate होने वाले हैं. That's what they are saying. Okay, यहाँ पे जो combine हुए थे chromatids वो अभी यहाँ पे separate होने वाले हैं. So undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. So total 4 cells form हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 और नीचे वहां पे 1 2. So total 4 haploid cells. Haploid cells again, what is haploid cells? जिसमें बस एक ही set of chromosomes होते हैं, डबल chromosomes नहीं होते हैं. Okay. Also एक और point है, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन मियोसिस. माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस कब यूज होता है, कोई भी वुंड होगा उसको हील करना होगा या फिर ब्लड के सेल्स फॉर्म करने होंगे, वहां पे माइटोसिस यूज होता है. तो मियोसिस कहाँ पे यूज होता है, मियोसिस इज यूज्ड इन गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो अभी ये गैमेट क्या है, सो गैमेट इज बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो ह्यूमंस में देयर विल बी मेल के लिए स्पर्म सेल्स and female के लिए egg cells, right? So sperm cells and egg cells come together to form a new individual, right? So ये reproduction के cells है. So gamete को germ cells भी बोलते हैं, और germ cells में क्या होता है basically sperm के cells और egg cells, male sperm cells and female female egg cells. Okay, and what is spore then? Spore is basically plant का reproductive cell. Okay, जैसे एनिमल्स में स्पर्म्स एंड एग सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं. सो मियोसिस जो है वो गैमेट प्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन में मियोसिस होने वाला है. ओके, नेक्स्ट we want to see a few questions. So end of chapter question on page number 21, distinguish between mitosis and meiosis. मैंने तुम लोग को माइटोसिस अभी रिवाइज करवाया एंड मियोसिस हमने अभी देखा. सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds. प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू कम अप एटलीस्ट विद 2 to 3 points फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन. ओके, तुम लोग को 2-3 पॉइंट्स अपने आप इजीली आ जाने चाहिए अगर तुम लोग ने अच्छे से समझ लिया अपने पिछले कुछ स्लाइड्स को. ओके, सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds. पॉज द वीडियो एंड राइट एटलीस्ट 2 to 3 points फॉर distinguish between of mitosis and meiosis. Okay, okay, I hope you all have paused the video and at least 2 से 3 points तो तुम लोग को आ गए होंगे difference between mitosis and meiosis में. Okay, let us see the answer. So first point, this type of cell division occurs in somatic cells and stem cells. So somatic cells और stem cells का मतलब हमने last learning session में देखा था. What are somatic cells? Somatic cells are all living cells except for reproductive cells. सारे living cells but reproductive cells नहीं होने चाहिए. And what are stem cells? Stem cells are वो special cells जो किसी भी टाइप के सेल्स में बदल सकता है. So stem cells तुम लोग का ब्रेन सेल भी बन सकता है, किडनी सेल भी बन सकता है, लिवर सेल भी बन सकता है, अलग अलग टाइप के सेल्स बन सकते हैं स्टेम सेल्स. ओके, सो माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में होने वाला है. मियोसिस विल हैपन इन जर्म सेल्स. दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. राइट, यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. वेयरएज मियोसिस में इफ यू रिमेंबर प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम जो साथ में आते हैं वो लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने वाले हैं. सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस यानी जिनका साइज और शेप सेम है, वो लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं. ऐसा कुछ भी माइटोसिस में नहीं होता. नेक्स्ट, a diploid cell produces 2 diploid daughter cells after mitosis. Again, what is diploid? Haploid का उल्टा. डिप्लॉइड में डिप्लॉइड सेल में सारे क्रोमोसोम्स डबल होंगे. सो माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स को बना देगा, वेयरएज मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से शुरू होगा बट 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा. अगेन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, डिप्लॉइड मतलब जिसमें सारे क्रोमोसोम्स डबल होंगे, हैप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स सिर्फ सिंगल होंगे. ओके,
So that's your point number 3 for mitosis and meiosis. And last point is mitosis के लिए it takes place during healing. healing यानी कोई भी जख्म हो गई है तो उसको ठीक करने में, and new cells form होते हैं तब. Okay, whereas meiosis में it takes place during gamete production and spore formation. Again, that point you all could have thought of. Okay, so just add within your notes. अगर तुम लोगों ने 2-3 points लिखे हैं तो जो points नहीं लिखे थे just add those points. Okay, and we are going to move ahead. Also make sure the end of chapter questions are very important from your board exam point of view. So start by hearting answers. जब तक तुम लोग by heart नहीं करोगे, सिर्फ मेरे वीडियोस देख के, नोट्स बना के, क्विज दे के समझ जाओगे सब कुछ, that's not enough. तुम लोग को 2 महीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा. You all have to start by hearting and keep revising. बार बार by heart करके किसी को टेकअप दे दो कि अच्छा मैंने ये चैप्टर्स पढ़े, मैं आंसर्स बाय हार्ट किए. यू जस्ट चेक मैं सारे आंसर्स स्मूथली बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ क्या. ओके, कूल. सो नेक्स्ट इज अगेन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन. With the help of suitable diagrams, explain 5 stages of prophase 1 of meiosis. So ये लोग बोल रहे 5 stages prophase 1 के बताओ. So basically यहाँ पे जो प्रोफेज 1 मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर ही 5 स्टेप्स है. सो वो लोग टेक्स्ट बुक में बोल रहे हैं 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करो. ये जो प्रोफेज 1 स्टेप हो रहा है उसके हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करो. तो उसके 5 स्टेजेस है. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी. सो द आंसर इज ओके. बिफोर द आंसर उन्होंने ड्रॉ करने भी बोला, राइट? सो द डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज नॉट सो क्लियर. सो जस्ट कॉपी दिस डायग्राम. ओके, और यहाँ पे जो नाम लिखे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एटसेट्रा, ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कॉल दिस प्रोफेज स्टेज 1 स्टेप 1, प्रोफेज स्टेज 1 स्टेप 2, प्रोफेज स्टेज 1 स्टेप 3, प्रोफेज स्टेज 1 स्टेप 4, प्रोफेज स्टेज 1 स्टेप 5. ओके, से पूरे नए नए नाम्स लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट कॉपी दीज डायग्राम्स. Okay, okay, we're going to look into the answer now. So prophase 1 of meiosis is longer, लंबा है, and more complex, थोड़ा complicated है, इतना easy नहीं है. complex यानी easy का opposite. Okay, as compared to mitotic prophase. So mitosis में जो prophase है उसके स्टेप को और meiosis का जो prophase 1 है उसके स्टेप को कंपेयर किया तो meiosis का स्टेज 1 लंबा है और इतना सिंपल नहीं है, and is subdivided into following 5 phases. इन 5 phases में उसको डिवाइड किया जा सकता है. ओके, सो प्रोफेज स्टेज 1 का फर्स्ट फेज. ओके, स्टेज 1 फेज 1. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल. सो स्टेज 1 में वो सब क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक होते हैं, राइट? रस्सी जितने पतले होते हैं. सो वो अब कंडेंस होना शुरू होंगे. कंडेंस यानी छोटे होना, कॉम्पैक्ट होना, कंबाइन होना और दिखना शुरू हो जाएंगे. जनरली इतना इजीली दिखते नहीं है वो लोग, बट अभी दिखना शुरू हो जाएंगे प्रोफेज स्टेज 1 फेज 1 में. ओके, नेक्स्ट प्रोफेज स्टेज 1 फेज 2. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर. सो सॉरी, ये वाला. सो पेयरिंग होने लग जाता है. सो जो कोई भी होमोसोम्स का जो कोई भी क्रोमोसोम्स का साइज और शेप सेम होगा वो लोग साथ साथ में आ जाएंगे. ओके, पेयरिंग यानी साथ में आना और होमोलोगस यानी जिसका साइज और शेप सेम है. सो ये फेज 2 में होने वाला है ऑफ प्रोफेज 1. ओके, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स. नेक्स्ट प्रोफेज 1 फेज 3. रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, जिसका मतलब है दैट इज यानी जिसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये फेज 3 में होने वाला है. सो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो लोग अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे फेज 3 में. नेक्स्ट प्रोफेज 1 स्टेज, प्रोफेज 1 फेज 4. द क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन इन पेयर्स. सो अगर तुम लोग ने देखा यहाँ पे सब साथ साथ में है, राइट? सब साथ साथ में, बट अभी ये लोग थोड़े अलग अलग हो जाएंगे. बट जो होमोलोगस पेयर्स है वो लोग साथ में ही रहेंगे, बट बाकी जो है वो लोग थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे इन फेज 4. नेक्स्ट प्रोफेज 1 फेज 5. क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस्ड and assembly of mitotic spindle occurs.
कंप्लीटली कंडेंस यानी पूरी तरीके से वो एक्स शेप में दिखने लग जाएंगे. ओके. एंड असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अकर्स. तो ये जो स्पिंडल है सेंट्रियोल से जो निकलता है स्पिंडल फाइबर्स वो निकलने लगेंगे. न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. तो अगर तुम लोग ने यहाँ पे देखा ये जो न्यूक्लियस के आजू बाजू मेम्ब्रेन है वो थोड़ा वो दिखना बंद हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. सो दीज आर योर डिफरेंट phases of prophase 1. Prophase 1 के अंदर ही इतने सारे छोटे छोटे steps हैं. So you have to draw these diagrams and write these steps for this question. Okay. Again, end of chapter question यानी board exam के लिए important question. Okay. Next, there is use your brain power type के 6 very easy one line question, one line answer वाले questions. Okay. So just pause the video here. एंड इसके बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी. सो यू ऑल शुड बी एबल टू राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ. ओके. सो आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो फॉर 5 सेकंड्स फॉर यू ऑल टू राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से लिखने. ओके. सो आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकंड्स. ओके. सो आई होप तुम लोग को मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप लिखने आ गए होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे एक्सप्लेन कर दिए. ओके. वी आर गोइंग टू क्विकली सी एंड डिस्कस द आंसर्स. So, first question, what do you mean by diploid or 2n cells? Diploid का मतलब मैंने बताया था, right? Cells which have 2 sets of chromosomes is called a diploid cells. यानी हर क्रोमोसोम डबल डबल होंगे, इसलिए इसको 2n बोलते हैं. 2n क्यों? क्योंकि डबल होंगे यानी इवन नंबर होगा. इवन नंबर को हम लोग 2n में लिखते हैं. तो n 1 हो या 2 हो या 3 हो और 2 से मल्टीप्लाई होके इवन बन जाएगा, राइट? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड सेल्स? तो डिप्लॉइड का उल्टा हैप्लॉइड. डिप्लॉइड में 2n है, सो इसमें n होंगे. ओके. सो द सेल व्हिच हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड हैप्लॉइड. सो डिप्लॉइड में डबल डबल क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड में सिर्फ सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे. सो दैट इज योर हैप्लॉइड सेल. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स? अगेन आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस लर्निंग सेशन. होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी जिसका सेम साइज और शेप होगा उसको बोलेंगे होमोलोगस. होमो यानी सेम. नेक्स्ट, whether the gametes are diploid or whether gametes are diploid or haploid and why. gametes क्या मैंने तुम लोग को बोला था, राइट? gametes are basically germ cells बोल सकते हो या फिर मेल sperm cells या फिर फीमेल egg cells जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले हैं. सो जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले हैं सेल्स उसको gametes बोलते हैं. सो gametes diploid होते हैं, haploid होते हैं, ये पूछ रहे हैं. और क्यों? सो gametes haploid होते हैं because they are formed by mitotic division of germ cells. तो तुम लोग को मैंने बताया था कि माइटोसिस किस में होता है? गैमेट्स के अंदर होता है. और माइटोसिस में हैप्लॉइड्स फॉर्म होते हैं, ये भी पता है. तो ये कनेक्शन तुम लोग को बनाना था कि अच्छा गैमेट्स मियोसिस से फॉर्म होते हैं और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं. सो ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे इन दोनों पॉइंट्स को तो तुम लोग को आंसर मिल जाना चाहिए था कि हैप्लॉइड्स में गैमेट्स में हैप्लॉइड्स बनते हैं क्योंकि वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं. सॉरी, मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, नॉट माइटोटिक. ओके. आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी गलत बोला था. सो मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन से नहीं बनते. और मियोटिक डिवीजन में हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर मैंने 4th क्वेश्चन में दे दिया था. सो हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स. ओके. सो डिप्लॉइड सेल्स का जब मियोसिस होता है तब हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स? हैप्लॉइड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके. सो फर्स्ट पॉइंट, हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो हैप्लॉइड सेल्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. The gametes unite at the time of fertilization and thus chromosome number is restored in the progeny. Again, progeny ये word याद है? progeny हम लोग ने 9th standard में पढ़ा था. progeny यानी whatever son daughter जो नया individual बनता है after reproduction उसको बोलते हैं progeny. Okay? So जो नया individual बन रहा है that will be called as progeny. So the gametes unite at the time of fertilization. So जब भी reproduction हो रहा है ये जो gametes है male स्पर्म सेल और फीमेल एग सेल ये दोनों यूनाइट होने वाले फर्टिलाइजेशन में. और जब फर्टिलाइजेशन में यूनाइट होंगे
सो गैमेट क्या हैप्लॉइड है, राइट? सो इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। So जब साथ में हो जाएंगे तो सब डबल डबल हो जाएंगे, राइट? और क्रोमोसोम्स हमेशा सेल में डबल होने चाहिए। सो अपने आप वो डबल हो जाते हैं जब वो लोग यूनाइट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। सो वो जो प्रोजेनी होगा, यानी जो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, उसमें डबल डबल क्रोमोसोम्स होंगे, जैसा होना चाहिए। The fusion of gametes introduces genetic recombination. So अगर gametes कंबाइन हो रहे, फ्यूजन यानी साथ में आना, सो इसमें कुछ क्रोमोसोम्स है और इसमें कुछ क्रोमोसोम्स है, दोनों साथ में आ जाए तो दोनों मिक्स होने वाले हैं। और जब भी मिक्सिंग होने वाला है तब अलग अलग वराइटीज मिलेगा। किस तरीके से मिक्स हो उस पर डिपेंड करेगा कौन से वराइटीज मिलेंगी। ओके, सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी। सो इफ यू सी, जिसके मम्मी पापा सेम होते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग सेम नहीं दिखेंगे, सब लोग की आंखों का कलर सेम नहीं होगा। सब लोग में थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम क्रोमोसोम्स यूनाइट हुए, बट किस तरीके से कंबाइन हुए वो सब में डिफरेंट है, इसलिए वेरिएशन है। वेरिएशन यानी अलग अलग है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन प्रोसेस। तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा अच्छा एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन यानी क्या? जनरेशन से जनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट वाज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. So that's it for this learning session. I hope you all learned a lot during this learning session. The new words we learned today were gamete or germ cell, which is male के sperms या फिर female के egg cells. Okay, sperm cells और egg cells. Spore क्या है? Reproductive cells in plants है. So that's it for this learning session. I hope you learned a lot in this learning session, and I'll see you all in the next learning session. See you guys. Peace. Bye.